So welcome you all. Join the session. Share this question. Which one of the following phenomenon is used in optical fiber? और नीचे दिए गए जो भी phenomenon है, गुण है, कौन सा गुण ऑप्टिकल फाइबर में इस्तेमाल होता है? याद रखिएगा, ये स्टेट क्वेश्चन है. ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, राइट? So now see, in fiber optic communication, the signal travels in the form of ये स्टेट क्वेश्चन है, याद लाइट वेव्स. क्योंकि क्या है, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे काम करता है. तो याद रखिएगा, इन फाइबर ऑप्टिक कम्युनिकेशन द सिग्नल travels in the form of light waves. Okay, so come to this one. Now here is the so-called the assertion A. Assertion is a diamond sparkles more than a glass imitation cut to the same shape. रीजन है कि the refractive index of diamond is less than that of the glass. अब देखिए इसमें क्या है आपका कि ये पहला जो है क्या है, both A and R are true and R is the correct explanation of A. No, both A and R are true, but R is not correct explanation of A. A is true, but R is false. ऐसे ही देखिए ना ये कि डायमंड स्पार्कल्स, ये तो सही है. The refractive index of diamond is less than, नहीं, refractive index of diamond is more than that of the glass. Remember. So now right response is C. So now again come to this question. Consider the following statements. Fiber optics is based on the principle of total internal reflection, right? In an optical fiber communication systems, power consumption is extremely low. In India, Reliance Group of Industries is engaged in the manufacture of the optical fiber. This is all the three statements are correct, याद रखिएगा. So right response is A. फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ये स्टेटमेंट को. In optical fiber communication systems, power consumption is extremely low. एक ये भी सही है. पहला था हमारा fiber optics is based on the principle of total internal reflection, ये भी सही है. And in India, AIS group of industries is engaged in the manufacture of the optical fiber, ये सही है, तीनों सही है. So the right response as per the need of the question is A. 1, 2, 3, all are correct. Okay. Come to this. Optical fiber works on the principle of, ये भी स्टेट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर यानी प्रकाशीय तंतु काम करता है. ओके, let's look at this one. Endoscope used by the doctors for examining the
inside of the patient's stomach works on the principle of, ये भी हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर इंडोस्कोपिक ये इसको काम करता है. नेक्स्ट कम टू दिस वन, the phenomenon used in optical fiber for a transmission of light energy is, ये भी क्या है हमारा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन. ओके, नोट सी, constantly following नेचुरल फेनोमेनन, जो भी प्राकृतिक जोन है वो देखिए हमारा कि terrestrial heating, reflection of light, diffraction of light. इसमें क्या है कि नेचुरल कौन है, प्राकृतिक कौन है, राइट, ड्यू टू विच of the phenomenon is Mire's form, किसके कारण हमारा मीरेस का फॉर्मेशन होता है, ये जानना है. ठीक है, तो याद रखिएगा कि मीरेस का जो फॉर्मेशन होता है, जिसको हम मृत्तिष्णा भी बोलते हैं, ये हमारा इनफैक्ट टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होना चाहिए, लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन इज आल्सो ए काइंड ऑफ रिफ्रैक्शन. इसलिए चारों ऑप्शन दिया है, उससे हमारा 3 रेस्पॉन्स आएगा, याद रखिएगा. आइए इस पे, an endoscopy used by physicists to view the internal physician to view the internal parts of a body organ. It is based on the principle of, ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. ओके, this, which of the following reflects back more sunlight as compared to other 3. अब देखिए हम लोग कि सैंड डेजर्ट है, पैडी क्रॉप लैंड है, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो है, और ये पैडी लैंड है. ये क्या, फिर से क्वेश्चन में बोल दे रहा हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर. नीचे किसमें सबसे अधिक सनलाइट का अब हमारा जो बैक होगा वापस आएगा, एटमॉस्फेयर में बैक चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड बैक, वो हमारा सी होगा, लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो. आइए इस पर करते हैं हम लोग. द रीजन ऑफ मीरेस इज, ये मीरेस जिसे हम कहते हैं मृत्तिष्णा भी बोलते हैं हम लोग, ये क्यों फॉर्म करता है, याद रखिएगा. ऊपर में क्वेश्चन था जो मैंने बोला था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का वो करीब का आंसर था, इसलिए मैंने उसको राइट किया था, पर उसका असल रीजन जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, याद रखिएगा. मीरेज फॉर्मेशन इज ड्यू टू द फिनोमेनन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूर्ण आंतरिक परावर्तन. ओके, so see here the technique to integrate and mark the image of 3-dimensional object. एक डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, होलोग्राफी. फिर आइए हम, मीरेज फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है. एग्जाम याद रखिएगा.
look at this. The generative images on a screen by focusing and electronic beam on phosphorus coated screen is called. Okay, yeah, this is called, याद रखिए स्टेट क्वेश्चन है, roster scan. Remember, roster scan. अब देखिए इसे फिर, Raman effect deals with the light rays passing through. Yes, the state question है, जो भी पारदर्शी माध्यम है सबके लिए लागू है Raman effect. Okay. See here, consider the following statements. Light of longer wavelength is scattered much more than the light of shorter wavelength. Okay. The speed of visible light, ये तो गलत है ये वाला. The speed of visible light in water is 0.95 times the speed in vacuum. ये भी आपका गलत है, wrong है ये. Radio wave shaft produced by rapidly oscillating electrical currents, ये statement सही है. To detect the over speeding vehicles, police use the Doppler effect of reflected short waves. ये भी सही है. यानी राइट ऑप्शन जो है नीचे में आप देखिएगा तो डी सही होगा. स्टेटमेंट 3 and 4 are correct. So the right answer is D. देखिए, for reproducing a sound, a CD means compact disc. Remember, audio player uses a state question है, याद रखिएगा. लेजर बीम. अब देखते हैं इसमें, when a CD compact disc used in audio and video systems is seen in sunlight, rainbow-like glass is seen. This can be explained on the basis of the phenomenon. याद रखिएगा, स्टेट क्वेश्चन है, रिफ्लेक्शन एंड डिफ्रैक्शन. सो राइट रेस्पॉन्स हमारा ए हो जाएगा. चलिए इसको आते हैं. इंसर्शन है हमारा ए. इन ए मोशन पिक्चर usually 24 frames are projected every second over the whole length of the film, right? Reasoning क्या है? An image formed on the retina of eyepieces for a image formed on the retina of eye persists for 0.1 second after the removal of the stimulus. इसमें क्या होगा कि ये तो सही है पर आई फॉल्स है, आर फॉल्स है. सो राइट रेस्पॉन्स इज ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. देखिए, television signals cannot be received beyond a certain distance because जो टेलीविजन से दूरदर्शन का सिग्नल्स होता है cannot be received beyond a certain distance. खास दूरी के बाहर वो आपका रिसीव नहीं होता है. वो क्यों, सो देखिए आप. इसकी रीजन है हमारा डायरेक्ट क्वेश्चन, याद रखिएगा. The surface of the earth is curved.
डी आंसर है ये, याद रखेंगे। कम टू दिस वन, which type of image of an object is formed by eye lens of the retina? अब सोचिए, ये क्या बनता था? इन्वर्टेड, इन्वर्टेड एंड रियल। कैसा बनता है? इन्वर्टेड एंड रियल। लेकिन क्या है हमारा बाय मेंटल इंटरप्रिटेशन क्या होता है कि जो इमेज जो बनता है उस इमेज को हमारे ब्रेन तक पहुंचाया जाता है ऑप्टिकल फाइबर के चलते, तब जाके इमेज जो होता है वो सीधा हो जाता है। रिमेंबर, कम टू दिस वन, द टेक्निक यूज्ड टू ट्रांसमिट ऑडियो सिग्नल्स इन टेलीविजन ब्रॉडकास्ट इज, राइट क्वेश्चन है ये, देख लीजिए। ये दिस वन, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन, ये डी आंसर इज डी। याद रखिएगा, the technique used to transmit audio signals in television broadcast is frequency modulation. This one, the principal reason why it is better to have two eyes than one. हमें दो आंखें क्यों हैं, एक ही रहता, क्या इसका रीजन है? ये स्टेट क्वेश्चन है। It enhances distance and depth perception in us. D answer. In human eye, light rays get transformed into neural impulses at, state question है ये, option is retina, right answer is retina. Come to this, direct viewing of sun during total solar eclipse causes irreversible damage to eyes. The retinal burn is caused by which of the following components of the sun's rays? ये स्टेट क्वेश्चन है, याद है आपको? अल्ट्रावायलेट लाइट, so this one, image formed on retina is, रेटिना पर इमेज फॉर्म करता है, इसके पहले भी चर्चा हुई है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट बट इन्वर्टेड। The color of the star is an indication of its, किसी स्टार का कलर जो किसी चीज को इंडिकेट करता है, तो याद रखिएगा टेम्परेचर को इंडिकेट करता है। रिमेंबर, which one of the colors has the longest wavelength? याद रखिएगा रेड का होता है, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। wavelength of light क्या होता? varies from violet end of the spectrum to red end, big wave बैंडी आप डाला। wavelength क्या है? violet से तरफ बढ़ता है। ये देखिए, diffusion of light in atmosphere takes place due to, किस कारण से होता है? ये स्टेट क्वेश्चन है। dust particles, the light with the shortest wavelength, सबसे कम किसका वेवलेंथ होता है? दिया हुआ है चारों में उसको, तो आप देख लीजिए कि वायलेट, मैंने अभी बताया ना, प्योर वेवलेंथ का मान विजिबल जो पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रम है सोलर स्पेक्ट्रम, जिसमें कि वायलेट से रेड तक वेवलेंथ का मान बढ़ता है, मीनिंग वेयर बाय वायलेट जो है उसका वेवलेंथ सबसे कम है और रेड का सबसे अधिक है इन द विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ओके, in the visible spectrum, the color having the shortest wavelength is violet.
That question. The diffusion of light in the atmosphere takes place due to dust particles. पर भी चर्चा हुई है. Which one of the following has the highest energy? सबसे अधिक ऊर्जा किसकी होती है? देखिए एक्चुअली एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है E is equal to H into nu. जहां पर क्या है H प्लैंक्स कांस्टेंट है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट. अब देखिएगा क्या, देखिए अगर हम गियोर की बात करें, हमको पता है लेमडा का मान बढ़ेगा तो वेवलेंथ का मान बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी का मान घटेगा. तो यहाँ पर क्या है, हमारा एनर्जी के बारे में पूछा जा रहा है. तो किसकी एनर्जी ज्यादा होगी वो आप देख लीजिए कि हमारा जिसका न्यू का मान ज्यादा होगा, राइट. अब क्या है कि वेवलेंथ और न्यू में रिवर्स रिलेशन है, वेवलेंथ और न्यू में, राइट. ब्लू का वेवलेंथ कम होता है, वायलेट के बाद ब्लू ही आता है, वायलेट इंडिगो ब्लू. ब्लू का वेवलेंथ कम है तो फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा. तो चार इसमें जो है, चारों में हमारा जो राइट रेस्पॉन्स रहेगा ब्लू होगा. ब्लू क्या वेवलेंथ का मान कम होता है, इसलिए फ्रीक्वेंसी का मान ज्यादा होगा, इसलिए एनर्जी का मान ज्यादा होगा. तो देखिए the color of light is determined by its color of light को कैसे डिटरमिन करते हैं. राइट क्वेश्चन है वेवलेंथ. रिमेंबर which one of the following colors of white light is least deviated by the glass plane. सबसे कम डेविएशन किसका होता है? ये भी राइट क्वेश्चन है, रेड का. अब इसके पीछे रीजन क्या है देख लीजिए. फॉर्मूला होता है डेविएशन के लिए कि डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू ए. म्यू रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, राइट. अब क्या है हमारा कि म्यू का मान जो है, जैसे हम देखते हैं कि यहाँ पे डिफरेंट कलर ऑफ लाइट है, राइट. मीडियम सेम है. तो म्यू का मान क्या होता है, दो बातों पर निर्भर करता है, कलर ऑफ लाइट पे और हमारा नेचर ऑफ द मीडियम पे. तो ये क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में इसलिए कहा कि which of the following colors of white light is least, क्यों कम डेविएशन होता है, डेल्टा का मान कम क्यों होता है. तो मैंने बताया डायरेक्ट क्वेश्चन है. एक्चुअली क्या है कि रेड का वेवलेंथ जो होता है वो ज्यादा होता है, फ्रीक्वेंसी कम होता है, और रेड का जब वेवलेंथ का मान ज्यादा होगा, ठीक है, ये मेरी बात आप सुन रहे हैं ना. तो अब देखिएगा कि यहाँ पे तो स्पेस नहीं है, अदरवाइज मैं रेड डायग्राम बना के दिखा देता, लेकिन फिलहाल मैं इतना ही कहूंगा. डायरेक्ट क्वेश्चन है हमारा, रेड कलर याद रख लीजिएगा. चूज द करेक्ट स्टेटमेंट. सही स्टेटमेंट चुनिए. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज लेस, ऐसी गलत लग रहा है. वेवलेंथ ऑफ रेड लाइट इज मोर देन वायलेट लाइट, ये सही है. यही राइट रेस्पॉन्स है जो गिवन है उसमें, बी. अब इसको देखिए. The twinkling of stars in a sky, in clear sky during a night time can be explained with, कैसे एक्सप्लेन हो सकता है, याद रखिएगा. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन. अब इसको देख लें हम लोग. Assumption A, in the visible spectrum of light, red light is more energetic than green light. ये तो false है. The wavelength of red light is more than that of green light. ये सही है, ऐसे दिखेगा. फिर आपका D right response है. A is false, but R is true. That's all for this session. Thank you.